We are again here with another lecture on holder and holder in due course. This is also a very important topic when we talk about negotiable instruments. In the last lecture, I had explained you the meaning of holder and holder in due course. All that you need to remember is who is a holder. Holder is a person whose name is mentioned on the instrument, and holder in due course is a person who will actually receive the payment of the negotiable instrument. Say, for example, if I have an instrument on my name in my possession, I cannot wait till the due date. So, what would I do? I endorse this instrument to A. A does not want to wait till the due date. A endorses it to B, B to C, C to D. Now, C is the person who is going to receive the payment of this instrument. So, C would be called holder in due course. There is a presumption that whenever we endorse the instrument, we assume that this party would be taking the payment. So this party would be the holder in due course. So we say every holder is a holder in due course. And a holder in due course enjoys certain privileges given by the Negotiable Instrument Act 1881. So under this topic, we are going to study about the meaning of holder and holder in due course and the special privileges to a holder in due course. And this is a question which is framed for the exams also. What is a holder and what is a holder in due course? What are the special privileges given to a holder in due course by the Negotiable Instrument Act 1881? So whatever I'm going to explain in the slides to follow, that is what you have to mention in your answer. The holder of a promissory note, bills of exchange, or check means any person entitled in his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount thereon from the parties thereto. This is whatever I have explained you up till now. In one line, it means holder is a person who has the instrument on his name under his possession. Essential conditions of a holder: he should be entitled in his own name to the possession of the instrument, and either he has the possession or he has entitled to recover the possession. मतलब या तो उसके पास possession है या तो उसके नाम पर इंस्ट्रूमेंट है और वो उसको इंस्ट्रूमेंट को बस उसकी डिलीवरी लेना है उसको. Holder in due course is a person who acquires a promissory note, bill of exchange, or check bona fide for value and before maturity. Holder in due course must satisfy the following conditions. He became the holder for valuable consideration. Holder in due course बनने के लिए उसे जो ये instrument है, he should receive the instrument for some consideration given by him to the holder. He became the holder before maturity of the instrument. The holder in due course must receive the possession of the instrument before the date of maturity of the instrument. He became the holder in good faith. Whenever we take some instrument from another party, we always take it in good faith. कि हमें नहीं पता कि पार्टी ने कैसे उस इंस्ट्रूमेंट को अक्वायर किया है, पर हम तो ये मान के ही चलते कि उसने अच्छे टर्म्स में अच्छे समय में ही उसको अक्वायर किया होगा. से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने किसी पार्टी को धमकी देकर या चोरी करके उसका पोजेशन लिया है, तो इन दैट केस नेचुरली माय टाइटल इज डिफेक्टेड, माय टाइटल इज नॉट गुड. बट अगर मैं ये इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स कर रही हूँ और होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में जा रहा है, तो ये जो भी मेरा डिफेक्टेड टाइटल है वो टाइटल अच्छा हो जाएगा. Privileges to a holder in due course. The law has given some special privileges to a holder in due course. A holder in due course acquires good title to the instrument even if the title of the transferor was defective. The defect of title washes away when the instrument passes through the hands of a holder in due course. Now, what are the special privileges? Number one, inchoate stamped instrument. अगर कोई एक inchoate stamped instrument है, मतलब blank instrument है और वो holder in due course के हाथ में लगता है, so the
person liable to make the payment on the instrument. He cannot deny the payment कि इसमें तो उसने अमाउंट ज़्यादा भर लिया है या फिर ये तो इतने अमाउंट के लिए ही था. जो भी अमाउंट होल्डर इन ड्यू कोर्स मेंशन करेगा, दैट पार्टी इज लायबल टू मेक द पेमेंट. और जो भी डिफरेंसेस अराइज होते हैं दैट ही हैज टू डील विद द होल्डर, बट अदरवाइज ही कैन नॉट डिनाई द पेमेंट टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. Liability of prior parties. Whosoever are the prior parties involved with the instrument. अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स को पेमेंट नहीं होता तो ये सारी प्रायर पार्टीज की जो लायबिलिटी है वो अराइज हो जाएगी. एक्सेप्टर कैन नॉट एस्केप लायबिलिटी ऑन अ फिक्टिशियस बिल. यदि कोई ऐसा बिल है जिसमें कुछ कंफ्यूजन है पार्टी को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो जो भी एक्सेप्टर है वो इस पार्टी की लायबिलिटी से नहीं बच सकता. उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स को तो एक्सेप्टेंस भी देनी पड़ेगी, पैसा भी देना पड़ेगा. Not affected by conditional or special purpose delivery. And lastly, instrument cleansed of all defects. मतलब no matter what defect of title is held by the parties prior to the holder in due course, once the instrument reaches the hands of the holder in due course, all defects are cleansed. कोई भी दोष उस इंस्ट्रूमेंट पे नहीं रहेगा. उस इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट तो होना ही होना है. इंस्ट्रूमेंट obtained by unlawful means or for unlawful consideration. यदि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो गलत तरीके से पाया गया हो या अनलॉफुल कंसिडरेशन के अगेंस्ट में मिला हो सकता है मैंने किसी को मारा और मुझे एक चेक मिला उसके बदले में, तो ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है. But once this instrument reaches the hands of the holder in due course, no explanation is required and nobody can deny the payment. Every holder is presumed to be a holder in due course. मतलब जितनी बार हम इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करते हैं या आगे बढ़ाते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जिसको भी दे रहे हैं वो इसका पेमेंट तो लेगा ही. Acceptor for honor cannot deny his liability to a holder in due course. कई बार क्या होता है, एक्सेप्टर फॉर ऑनर मतलब क्या होता है कि सपोज अगर आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो हम लोग ऐसे ही एक बिल आप बोलते ठीक है एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं, फिर इसको हम बैंक से डिस्काउंट कर लेंगे. तो मैं बन गई, मुझे ज़बरदस्ती उस पर एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, आई कैन नॉट से नो टू यू. तो यदि मैंने एक्सेप्टेंस दिया हुआ है और ड्यू डेट पर होल्डर इन ड्यू कोर्स आकर मुझसे इसका पेमेंट मांगता है, तो मैं पेमेंट डिनाई नहीं कर सकती. मैं ये नहीं कह सकती आई वॉज जस्ट एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर. आई विल हैव टू मेक द पेमेंट टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. डिस्चार्ज ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. मतलब कैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जो पार्टीज जो भी इन्वॉल्व है दे आर डिस्चार्ज ऑफ देयर लायबिलिटी. दे आर डिस्चार्ज, इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज इन टू वेज. एक है डिस्चार्ज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहा, और दूसरा है डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय वन और मोर पार्टीज. डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय वन और मोर वेज. तो डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे हो सकता है, बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स. जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका समय पे पेमेंट हो गया और वो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू ही नहीं रही, वो इंस्ट्रूमेंट भी डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया. डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन. अब सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है वो उसके बदले हमने कोई नया इंस्ट्रूमेंट बना दिया या पार्टीज उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन दैट इंस्ट्रूमेंट विल लूज इट्स वैलिडिटी. By acceptor of a bill becoming holder. Suppose अगर मैं एक्सेप्टर हूँ और ये बिल जो है वो इंडोर्स हो कि मेरे को इंडोर्स हो गया, तो आई कैन नॉट मेक पेमेंट टू माई सेल्फ. तो अगर मैं ही उसकी होल्डर बन जाऊंगी जिस बिल का मुझे ही पेमेंट करना है, तो नेचुरली दैट इंस्ट्रूमेंट वुड बी डिस्चार्ज. दूसरा है बाय रिलीज. सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका मुझे पेमेंट करना है, वो इंडोर्स हो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास चला गया. तो बेस्ट फ्रेंड ने देखा मीता से मुझे 10,000 रुपये लेने हैं, तो मैं बेस्ट फ्रेंड से मीता से क्या पैसे लेने, आई एम रिलीजिंग यू ऑफ योर लायबिलिटी. तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो दिस इंस्ट्रूमेंट वुड नॉट हैव इट्स वैलिडिटी, क्योंकि उसने मुझे मुक्त कर दिया मेरे पेमेंट देने से. नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज. इसमें क्या होता है, बाय कैंसिलेशन एक पार्टी ने बिल को कैंसिल कर दिया, बाय रिलीज पार्टी ने पेमेंट लेने से मना कर दिया, बाय पेमेंट हो गया तो जो भी पार्टीज इन्वॉल्व थी वो सब मुक्त हो गई. बाय अलाउिंग मोर देन 48 आवर्स टू विथड्रॉ टू एक्सेप्ट द बिल. मतलब हमने
बिल को प्रेजेंटमेंट के लिए प्रेजेंट किया और 48 आवर से ज़्यादा का समय हो गया और जो ड्रॉई है वो उस पर एक्सेप्टेड लिख के साइन ही नहीं कर रहा, तो वो जो है सब पार्टीज जो है वो डिस्चार्ज हो गई। बाय डिले इन प्रेजेंटिंग द चेक्स, अगर चेक की लाइफ 3 महीने है, मैं 3 महीने के बाद उस चेक को अगर जमा कर रही हूँ बैंक में, तो वो चेक नहीं रहा, जो पार्टी थे वो भी डिस्चार्ज हो गई। बाय मटेरियल ऑल्टरेशन, यदि हम पार्टी से बिना पूछे कुछ भी उसमें चेंजेस कर दें इंस्ट्रूमेंट में, तो वो इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी खत्म। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, सपोज अगर कुछ चेंजेस हो गए लॉ में और सपोज एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट के आदमी के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पा रहा है और कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया हुआ है, तो वो इंस्ट्रूमेंट वो पार्टीज जो है वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग आती है नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। सपोज अगर एक इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा, हमको जाके हम नोटरी के पास जाएंगे, सारे डिटेल्स जो है उसके नोट कराएंगे। पर अगर हम नोटरी के साथ पास जाके उसके रजिस्टर में सारे डिटेल्स नोट करा रहे हैं और नोट करने के बाद वो हमें एक सर्टिफिकेट दे रहा है, तो वी कॉल इट प्रोटेस्ट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। Noting is recording of the fact of dishonor by a notary public, and noting must be done within a reasonable time of dishonor. Noting is not compulsory, but in case of a foreign bill, if the law of that foreign country requires noting, it must be got done. Protest is a formal certificate given by the notary public when the bill has been dishonored. The holder may, within a reasonable time, get the fact of dishonor noted and certified by a notary public. Noting is the authentic proof of dishonor of a negotiable instrument, and it has got validity in the eyes of law. It is a memorandum of a minute recorded by the notary public upon the dishonored instrument. Thank you. That will be all for the day. The next, we'll continue with this topic in the next session. I have to complete the topic negotiation and a few other topics like endorsement also. So that will be all for today. In case if you have any queries, please feel free to send me a mail on this ID, mitasha300 @yahoo.com. Thank you so much for listening.